Hello students, how are you all? I am hoping that you all are safe and fine. Today again you are here with me Deepika, your science teacher, and today we are going to do the recapitulation of chapter 2. So yes, it is just a revision or complete revision of the chapter 2. So yes, our chapter 2 is what? It is health and hygiene. So yes, first of all we should know about the meaning of health. Health is a state of complete physical and mental well-being. If we are physically fit and mentally fit, then only we are calling ourselves as a healthy person. Okay, for keeping ourselves healthy, what kind of things we have to do? We have to do the exercise daily. We have to take the nutrients in a proper amount, or we have to keep ourselves healthy by maintaining hygiene around ourselves. We have to take the good diet, or we can say we have to protect ourselves from the diseases, and we have to take the complete rest and sleep. So these are the things which make us healthy. Okay, now we are having components of food. So yes, food is having different kinds of component which we are intaking with the food to keep ourselves healthy, or this food is actually completing our नेसेसिटी ऑफ एनर्जी. हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे लिए ज़रूरी होता है. क्यों? क्योंकि वो हमें एक तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स देता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और जो भी हम काम करते हैं उसमें जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आती है? खाने से आती है. तो यस, basically the component of the food which is required to us is known as nutrients. So basically 5 nutrients are there in the food: carbohydrates, fats, proteins, vitamin, mineral. Yes, carbohydrate and fats are energy giving food. ये दोनों के दोनों energy giving food होते हैं which gives us energy. Carbohydrate like glucose give us instant energy, but fats give more energy than carbohydrates. वो हमें fats हमें ज़्यादा energy देते हैं as compared to carbohydrate. लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं. ओके, कार्बोहाइड्रेट कैन बी शुगर, स्टार्च, सीरियल्स, एंड फैट्स कैन बी वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर. तो यस, इस तरह से हमारे पास ये एनर्जी गिविंग फूड है. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर द ग्रोथ फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारी ग्रोथ करने में हेल्प करता है. मैंने आपको पहले भी बताया था इस एज में आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो इट कैन बी मिल्क, फिश, एग और मिल्क प्रोडक्ट. सारे के सारों में प्रोटीन बहुत होता है, इसलिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए. नेक्स्ट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. Vitamins and minerals actually are known as protective foods because they are protecting ourselves from many of the diseases. They are required in very small amount. बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते कि हम बल्क में उन्हें लें, उन्हें हमें थोड़ा सा अमाउंट लेना होता है और ये इतने ही बहुत हो जाते हैं, हमें बहुत हेल्प करते हैं. And yes, vitamins can be fruits, egg, fishes, green leafy vegetables, and minerals can be green leafy vegetables and fruits. So actually they are protecting us from many of the diseases. इन nutrients के अलावा भी हमारे पास दो और चीजें होती हैं. These are roughage and water. Roughage is helping us in getting rid of undigested food. हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में रफेज हेल्प करता है. फाइबर्स होते हैं. Water is very very essential part of our body. Our body, 2/3 part of our body is made up of water only. So water is required for the maintenance of liquid component in our body. तो water बहुत ही जरूरी है. So basically these are the components which are required by our body for the healthy functioning. Now our next topic is balanced diet. Balanced diet means a diet which contains all the nutrients which are required by our body, like which we discussed now only: carbohydrates, fats, vitamins, minerals, proteins, along with the right amount of roughage and water, so that we can keep us healthy. So this diet is known as balanced diet. Balanced diet contains of 4 groups. First one is cereal group. Cereal group means having the cereals like different kinds, cereals, rice, chapati, which contains basically carbohydrates and minerals. Next one is the group of vegetables.
and fruit groups. So obviously this contain vegetables and fruits, and which contains the vegetable and fruits are generally containing vitamins, carbohydrates, minerals and roughage. Roughage is basically fibers they are containing. Next is milk group. Milk group is all the milk and milk product like curd, paneer, ghee, anything which we are getting from the milk are known as milk group or milk product. This group basically give us proteins and fats. Now last one group is the protein group. Obviously this will give us protein containing proteins and fats. It contains fish, egg, meat, milk. So these kind of products will give us protein. Okay, so this is the balanced diet group. Basically we required all this in right amount. We required carbohydrates, carbohydrates and proteins in large amount, vitamins and mineral in small amount, and fats also we should not eat in a large amount because it can cause obesity. Next one topic is preventing nutrients of food. Actually only intake of the healthy food is not enough. We have to prevent the nutrient of the food which we are taking it. So for these 3 steps are required. First one is cooking, washing, cooking and storing. So these 3 steps should also be in a proper manner so that nutrients of the food should be remain in the food and get not washed away or get not exploit or vanish away. First one is washing. Actually whatever the food, fruit, vegetable or anything which we are buying from the market, it should be washed properly so that all the dust, germs, whatever present on the surface of the fruit and vegetables will be washed away with the water. Next one is we have to cook the food in that manner so that the nutrients of the food will remain intact. If we will overcook the food, then all the nutrients present in the food will be cooked away and they will be vanishes away. Next is storing. Storing of the food should be in the proper manner. We should store the food by covering the food. We can store the food if it is in extra amount, then we can store the food in the refrigerator to keep the low temperature so that micronutrients or microorganism will not grow on the food. Next, we can preserve the food by adding preservative like pickles. We can preserve sauces, jams or anything which we are buying from the market. We can preserve by adding preservatives. So in this manner we can prevent the nutrients of the food. Next topic is diseases. Diseases is the condition in which our body or a part of our body does not function properly. So this condition is known as diseases. Disease is of 2 types, like non-communicable diseases, which are also called non-contagious disease or deficiency disease, or communicable disease. So diseases are of 2 types, non-communicable and communicable. Non-communicable diseases are those diseases which do not transmit from one person to another person, but communicable diseases are the diseases which transmit from one person to another person through different means. Okay. So yes, first we are going to discuss about the non-communicable diseases. Yes beta, here I am going to discuss all the diseases in brief. If you want a complete or detailed explanation, then you can see my previous video. So yes, here I am giving just an overview of all the diseases. So first we are going to discuss about the non-communicable diseases. 9 non-communicable diseases are given in our book. One by one we are going to discuss all these diseases. First one is marasmus. Marasmus is a disease which caused due to the deficiency of proteins, carbohydrates and fats in our body. Actually, what is the symptom of this disease? In this disease, the body of the person or a child becomes so thin that the ribs will be visible. Ribs are visible of that particular child who is suffering from marasmus. So what kind of food he or she should take? He or she can take rice, wheat, potatoes, maize, honey, ghee, milk. So all the products which are having protein, carbohydrates or fats, they can eat these kind of products. Next is Kwashiorkor. Kwashiorkor is a disease which is caused due to the deficiency of proteins.
In this disease, the abdomen of a child become prominent, means it will bulges out and legs become thin. Okay, legs तो बिल्कुल पतली हो जाती है और पेट मोटा हो जाता है. So in this disease, we can take eggs, fish, meat, cereal, pulses, milk. जो भी चीजों में प्रोटीन होता है वो सब ले सकते हैं. Next disease is anemia. Anemia is a condition in which red blood cells number in the body becomes very less. जहाँ पे आरबीसी जो हमारी बॉडी में होती है, जो हमारे ब्लड का कलर रेड करती हैं, उनका नंबर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी येलो हो जाती है. ठीक है. इट इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन की डेफिशिएंसी से होती है. और इसमें मैंने अभी आपको बताया सिम्टम्स में क्या होगा कि बॉडी बिकम येलो हो जाएगी और उसके अलावा एक्सट्रीम वीकनेस और फटीगनेस हो जाएगी. पर्सन बहुत ही वीक हो जाएगा कि बहुत जल्दी थकने लग जाएगा. सो इन दिस डिजीज अ पर्सन कैन टेक एग्स, पल्सेस, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच. इस तरह की सब चीजों को वो खा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट डिजीज इज गोइटर. गोइटर इज अ डिजीज विच अकर ऑन द थोरैकिक पार्ट ऑफ द पर्सन. यहाँ से फूल जाता है. इट इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. सिम्टम मैंने अभी बताया कि थोरैकिक पार्ट यहाँ पे स्वोलन आउट हो जाता है. एंड इट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग फिश, सी फूड और आयोडाइज्ड सोल्ट. आपने टीवी में बहुत बार ऐड देखा होगा कि आयोडाइज्ड सोल्ट लेना चाहिए. तो यस, आयोडाइज्ड सोल्ट में आयोडीन है जो गोइटर नहीं होने देता. ओके. नेक्स्ट डिजीज इज इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ. बोन्स एंड टीथ का इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है. वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ठीक है. तो इस कंडीशन में पर्सन को क्या होता है कि उसकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, टीथ बहुत वीक हो जाते हैं, कि वो क्रैकिंग आवाज आने लग जाती है, टूट बहुत इजीली सकते हैं. तो इस तरह से हमें क्या लेना चाहिए? मिल्क, ग्रीन लीवी वेजिटेबल, मीट, फिश, पोटैटोज, इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत ज्यादा है. तो ये सब खाना चाहिए. नेक्स्ट डिजीज इज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए रात को अंधेरे में दिखने में हेल्प करता है. तो ये इसमें क्या होता है कि पर्सन रात को डिम लाइट में नहीं देख सकता. तो यही सिम्टम है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को ना दिखना, ये उसका सिम्टम है. और इस केस में क्या ले सकता है पर्सन? एप्पल खा सकता है, कैरेट, स्पिनच, मिल्क, ये सब चीजें खा सकता है ताकि उसको नाइट ब्लाइंडनेस ना हो. नेक्स्ट इज बेरीबेरी. बेरीबेरी इज अ डिजीज कोज्ड बाय द विटामिन बी. विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है. इसमें क्या है कि स्किन स्केलिंग हो जाती है, वो उतरने लग जाती है, वीक हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है, इस तरह के सिम्टम हो जाते हैं. इस केस में पर्सन कैन टेक मीट, फिश, एग, ये सब चीजें ले सकता है. ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, ये सब चीजें खा सकता है. नेक्स्ट इज स्कर्वी. स्कर्वी इज अ कंडीशन कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है. स्कर्वी में क्या होता है कि यहाँ पे गम पार्ट जो होता है ना, गम्स जो होते हैं, जो हमारे दांत को सॉकेट में बांध के रखते हैं, वो रेड हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, ब्लड निकलने लग जाता है. तो यस, इन दिस केस वी कैन टेक ऑल द सिट्रस फ्रूट. जो भी खट्टे होते हैं उस तरह के फ्रूट हम ले सकते हैं. लेमन, ऑरेंज, इस ग्रेप्स जो खट्टे वाले हैं, तो वो सब चीजें स्कर्वी से हमें बचाते हैं. लास्ट डिजीज इज रिकेट्स. रिकेट्स इज अ कंडीशन कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की वजह से होती है. रिकेट्स के केस में क्या होता है कि पर्सन की बेंट हो जाती है, लेग्स बिल्कुल बेंट हो जाती है, जिसकी वजह से चलने में प्रॉब्लम होती है. तो इस केस में भी वो मीट, फिश, एग वगैरह ये सब कुछ ले सकता है. इसके साथ में सनलाइट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. तो वो सनलाइट के अंदर बैठ के भी रिकेट्स की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है. सो बेटा, दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विच वी कैन से नॉन कंटेजियस डिजीजेस और डेफिशिएंसी डिजीजेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीजेस. Now next we are having the communicable diseases which can transmit from one person to another person. They can transmit because of the infection by germs, by bacteria, virus, protozoa. So the diseases which are spread through bacteria are cholera, pneumonia, tuberculosis, typhoid, which we discussed in detail in our previous video. And the diseases which caused by the virus are common cold, flu and COVID-19, which we are going through in these days. तो yes, कोरोना वायरस इज कोज्ड बाय द वायरस ओनली. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से जो डिजीजेस होती हैं, दीज आर मलेरिया एंड डिजेंट्री. सो दीज आर द डिजीजेस विच कोज्ड ड्यू टू द different kinds of different communicable methods. So these are communicable diseases. Now we are having next topic is how do they spread.
So yes, they can spread by number of means. Like first one is through air. एयर के थ्रू एक पार्टिकल दूसरे पर्सन तक पहुंच सकता है. फिर लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये जो सारे के सारे डिजीजेस हैं ये ट्रांसमिट हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ एयर. नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ वाटर. वाटर से कैसे डिजीजेस पास हो सकती हैं? यस, वाटर से कोलीरा, डिजेंट्री, ये जो खराब पानी, इन्फेक्टेड वाटर होता है, उनसे ये ट्रांसमिट हो सकती है. फिर उसके बाद हम करते हैं कि थ्रू इंसेक्ट्स, जैसे मलेरिया इज कोज्ड बाय द एनोफिलस बैक्टीरिया. तो यस, एनोफिलस, ये जो हमारे पास मक्खी होती है, फीमेल एनोफिलस होती है, ये ट्रांसमिट करती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये मलेरिया. ठीक है. और कई बार क्या होता है कि थ्रू इन्फेक्टेड स्किन, किसी की इन्फेक्टेड स्किन है और वहां पे से क्या होता है कि दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो जाती है. तो इस तरह की डिजीजेस होती हैं. टेटनस. तो यस, वी आर हैविंग नंबर ऑफ वेज बाय विच अ डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम अ नॉन हेल्दी पर्सन जिसको डिजीज है टू अ हेल्दी पर्सन जिसको डिजीज नहीं है. ठीक है. नाउ वी आर हैविंग द प्रिवेंशन मेथड्स कि हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि कैसे डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ना फैले. तो यस, सबसे पहले तो यस, एयर से फैली थी तो हमें अपने एयर पे प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए, अपनी आईज को हाथ से रब नहीं करना चाहिए, वॉश करते रहना चाहिए. उसके बाद अगर हम बात करते हैं थ्रू वाटर, तो हमें कहीं पे भी पानी नहीं पीना चाहिए, अपनी वाटर बॉटल साथ में रखनी चाहिए और आरओ का पानी पीना चाहिए. फिर हमने किया थ्रू इंसेक्ट्स, तो अपने घरों में इंसेक्ट्स ना हो, हमें अपने घरों में गुड नाइट या फिर ऑल आउट वगैरह चला कर रखना चाहिए. प्रॉपर उसके अंदर हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, वॉश करते रहना चाहिए, क्लीनिंग, स्वीपिंग, वाइपिंग, ये मॉपिंग, ये सब कुछ करते रहना चाहिए ताकि ना हो. इन्फेक्टेड स्किन से अगर होता है तो हमें, अगर हमारा इन्फेक्टेड स्किन है तो उसको हमें कवर करके रखना चाहिए. किसी और का है तो वो हमें टच नहीं करना चाहिए. और थोड़ा सा हेल्थ, मतलब थोड़ा सा हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए कि कोई इंसेक्ट्स वगैरह, कोई मक्खी मच्छर, कोई उनसे हमें आके ना बैठ सके. अपने आप को प्रोटेक्शन रखना चाहिए और हैंड को वॉश करते रहना चाहिए, फेस को वॉश करते रहना चाहिए. सो दीज आर द प्रिवेंशन विच वी कैन यूज इन ओवरकमिंग दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, ताकि हमें ये इस तरह के कम्युनिकेबल डिजीजेस ना हो. So yes students, we have discussed about different kind of diseases. We will do many of the prevention method, but still if disease will happen to us, then what we can do? We can take vaccination in that case. So yes, vaccination is a small amount is required to kill the bacteria, kill the germs which entered in our body. So vaccination is of two types. One vaccination we had given in the बर्थ और ड्यूरिंग आफ्टर द बर्थ ओनली, हम कुछ एक सालों में 5 साल तक बच्चों को देते हैं. एक वैक्सीनेशन होती है कि अभी आपको कुछ हो गया और आपने साथ के साथ वैक्सीन लिया. तो यस, अभी जो आप वैक्सीन लेते हो वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है, उससे आपको इंस्टेंट इम्यूनिटी मिलती है जो आपके बॉडी में जो आउटसाइड जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंटर कर गए हैं उनको किल करने का काम करती है. लेकिन वैसे वैक्सीनेशन में क्या होता है, जो हम बचपन में लेते हैं उसमें क्या होता है कि डेड या फिर वेरी वीक इम्यूनिटी, वेरी वीक जर्म्स होते हैं. हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट काम कर करके, फाइट कर करके स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अल्टीमेटली लेटर ऑन लाइफ में हमें जब भी वो डिजीज दोबारा एंटर करती है, जब भी वो जर्म्स दोबारा एंटर करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि वो उसको एंटर करते ही मार देते हैं. तो इस तरह की वैक्सीनेशन होती है. जो ये बचपन में हम वैक्सीनेशन करते हैं उनमें क्या क्या है? पोलियो वैक्सीन विच प्रिवेंट अस फ्रॉम द पोलियो, जो लेग्स में प्रॉब्लम हो जाती है. Next we are having DPT vaccine. DPT means diphtheria, pertussis and tetanus. तो इस तरह की चीजों से हमें प्रोटेक्शन देती है. Next we are having MMR. MMR मतलब measles, mumps, rubella. तो ये इस तरह की डिजीजेस से हमें प्रोटेक्शन देती है. तो यस, ये सारी वैक्सीनेशन हमारी बचपन में ही हो जाती है. Now we are having our next topic, that is hygiene. Hygiene is the cleanliness which we are maintaining around us, within us, or within us to prevent any disease. हाइजीन उस तरह की क्लीनिनेस को बोलते हैं, हमारे खुद की हैबिट्स को बोलते हैं जो हमें सही रखने का काम करती है. इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हम वी कैन टेक बाथ डेली, वी कैन वॉश आवर हैंड्स अगेन एंड अगेन व्हेन वी आर टचिंग एनी आउटसाइड ऑब्जेक्ट. We can brush our teeth twice a day. We can cover our food items with the covering material so that उसमें कोई microorganism ना जाए. We can cover our garbage system
or the disposable system with the proper system, we will prevent the collection of water around us because उसमें डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह की हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं हमारे घर में, हमारे रूम में, हमारे घर के बाहर, ताकि हम किसी भी डिजीज से बच सके। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज अगेन अ वेरी गुड वे टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज। क्या होता है कि एक्सरसाइज विल फिट आवरसेल्फ बाय कीपिंग द मसल्स स्ट्रॉन्ग, by increasing the strength and by increasing the nervous system circulation। जो blood circulation होता है उसको फास्ट कर देता है, जिससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा पहुंचता है, जो हमें फिट रखने का काम करता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिक्वेट रेस्ट। वी हैव टू टेक एडिक्वेट रेस्ट। हमें 8 to 10 आवर्स की रेस्ट और स्लीप लेना चाहिए, जो एक प्रॉपर हेल्दी पर्सन को जरूरी है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हम इतना रेस्ट ले रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है हमें फिट रखने में। Last we are having, we should maintain a good posture while studying, while sitting, while standing। क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं तो मेरा बैकबोन सारा खराब हो जाएगा। अगर मैं पढ़ते हुए अगर मैं हेड डाउन करके पढ़ रही हूँ तो मेरी आईज वीक हो जाएगी। अगर मैं चलते हुए प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रही हूँ पोस्चर, तो बैकबोन और फ्रंट बोन्स जो होती हैं उसके जो पोस्चर है, जो हमारी शोल्डर बोन्स है, वो वीक हो जाएंगी। तो इसलिए प्रॉपर पोस्चर जरूरी है हर तरह से, ताकि हम अपने आप को फिट और फाइन रख सकें। So students, this is an overview regarding chapter 2. Tomorrow we are going to discuss about the worksheet of chapter 2. मेरे पास कुछ एक मैसेजेस आए हैं जिन्होंने वर्कशीट कर ली है आज वाली। वेरी गुड बेटा, सो यस कीप इट अप, और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू योर वर्कशीट ऑन टाइम एंड पेस्ट इन योर नोटबुक इन अ गुड मैनर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।